थैंक यू सर, थैंक यू। आप तो बड़े सियानी मेंबर हैं सर। आई रेस्पेक्ट है सर, I express my gratitude to you for allowing me to speak. Sir, I rise to speak on the address delivered by the Honorable Lieutenant Governor to the August House. Constitutionally, the address is meant to reflect the vision, priorities and accountability of the government. Unfortunately, what we heard, that was more of a statement of intent than the performances. Sir, what should have been done, it is included. But what they have actually delivered, that has not been mentioned. Sir, the people of Jammu Kashmir were not looking for mere generalities and slogans, but they were looking for the poll promises to be fulfilled by the ruling party they have mentioned in their manifesto. My earlier friend has elaborately said about those poll manifesto, what they were to do. Except for 200 euros which they are supplying to AAY families and for slight increase in the pension scheme. Rest all of the poor promises are missing in this address and they have not mentioned anything of those things. Sir, now I will come to the employment. They had promised employment that they will fulfill filling of the vacancies which are of utmost need within 180 days. But how many appointments have been made? Only 7,600 appointments have been made. Sir, this is a very pessimistic state of affairs. Sir, they had promised to establish 2 skill development colleges to provide job to align with the local employability, but nothing has come on the ground. This is very pessimistic. Sir, now I will come to the daily wages. All sort of daily wages and NYC, midday meal cooks and everybody who is being engaged on seasonal basis, daily rated basis or other basis. Sir, I heard a statement from the Honorable Minister, the Deputy Chief Minister, that minimum wages are fixed in 2022. We are not going to revise it. Sir, with your permission, I want to inform the Minister that these wages are never static. They are dynamic in nature. And by law, they are supposed to revise these minimum wages after every 6 months. That's why the office of Chief Labour Commissioner is established. Sir, यहाँ पर 6 महीने में इसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के साथ लिंक किया जाता है और लिंक करके 6 महीने के बाद बेस को दिया जाता है. सर, आज तक आपने मिनिमम वेज नहीं दिया. फिर उसमें एक रूल है कि आपको जो मिनिमम वेज यूनियन का कम है या इधर का है, जो ज्यादा वेज है वो देना है, वो आपने नहीं दिया. इक्वल वर्क फॉर इक्वल पे सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है, वो आपने नहीं किया. सर, रेगुलेशन तो बड़े दूर की बात है. सर, मिनिमम वेजेस तो दीजिए. डोंट बिकम वायलेटर ऑफ लॉ. दीज एक्ट्स हैव बीन कम अंडर द ब्रिटिश रूल. पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, पेमेंट, सर, these payment of wages act and minimum fair wages act, they were drafted under the British government. आज अगर हमारी अपनी गवर्नमेंट थी, अपने मजदूरों को एक्सप्लॉइट कर रही है, तो हम क्या करेंगे? सर, इसके बाद मैं एजुकेशन में आऊंगा. मैडम यहाँ बैठी हैं, वो सुन ले. लगभग जो 8 में बच्चा पहुंच जाता है, मैथ का प्लस माइनस नहीं प्रॉपरली कर सकता. लिखने के अंदर 5 का बच्चा बोलता है, सेंटेंस फॉर्म नहीं कर रहा है. और 8वीं के अंदर में एक स्कूल, मिडिल स्कूल में एक टीचर है. हम क्या इस एजेंडे में देखेंगे? क्या इस एड्रेस पे पढ़ेंगे? क्या मेरे यहाँ लगभग 35 स्कूल है जहां पर एक टीचर मिडिल स्कूल को मैनेज कर रहा है. सर, इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि आज इन्होंने मेंशन किया कि ये स्मगलर की स्कीम, ये सुन लीजिए मैडम, सुन लीजिए. मेरे एक ऑनरेबल एमएलए बनी के कह रहे थे कि मेरे को 45 करोड़ पे मिले. मैं तो शॉक में चला गया. मेरी 1,81,011 के सेंसस में मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, उनकी 50-55 हजार की है, मेरे को 2.5 करोड़ पे मिला. मैडम, 14 करोड़ का पूरे डिस्ट्रिक्ट को मिला. ये तो रेवड़ियां बढ़ती जा रही है.
ये तो रेवन्यू बढ़ती जा रही है। समग्रा के अंदर में ये पैसा सेंटर से आता है, ये आप नहीं देते। पीएमसी में पैसा सेंटर से आता है, और अगर ये बड़ी और रहमान के और वो इंद्रवाल के एमएलए को देना है तो फिर दे दीजिए। हम जहां पर मुंह के ऊपर पट्टी बोल के बैठे रहेंगे। मैडम ये मैं आपके लिए कर रहा हूं, आपका हेल्थ का मैं जिस ग्रांट्स आएंगे उससे बोलूंगा। देयर इज अ क्रॉनिक शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स एंड पैरामेडिकल स्टाफ इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, प्राइवेट सेंटर्स एंड इन द जीएमसी। मैडम आज जितने जीएमसी मेरा जो चल रहा है 32% स्ट्रेंथ से चल रहा है, और ट्रॉमा सेंटर ने दिया रामबन में और उधमपुर में कि ये नेशनल हाईवे पे एक्सीडेंट होते हैं इनको अवॉइड किया जाए। आज ट्रॉमा सेंटर टोटली खाली पड़ा, वहां पर एक भी स्टाफ जो आपके डायरेक्टर हेल्थ ने देना था वो नहीं दिया, वो खाली पड़ा है। वी आर गेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बट वी आर नॉट पुटिंग इट टू यूज। लाखों रुपए की करोड़ों रुपए की मशीनें आई हैं, वो यूज नहीं हो रही हैं। आज भी बेसिक स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट के लिए हम लोग बाहर जा रहे हैं। वी मस्ट इंट्रोस्पेक्ट आवरसेल्फ। हमें अपने आप से पूछना है कि ये क्यों हुआ। और जो हेल्थ में आपने क्रिटिकल केयर ब्लॉक का मेंशन किया, दिस इज एनएचएम स्कीम। मैं आपके पास भी गया था मैडम, 26 करोड़ का उधमपुर के लिए सैंक्शन हुआ है। अगर वो आईटीआई वहां शिफ्ट हो जाता तो वो 26 करोड़ का वो लगता सेंटर का क्रिटिकल केयर ब्लॉक। ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इतनी स्कीम्स आपको दे रही है, इसको आप इस पैसे को आपके कहने के बावजूद मेरे डिप्टी कमिश्नर ने मैंने जगह भी बताई, उधर में उसको अप्रूव नहीं किया। और 3 बार जो जगह बताई वो उसने जो बताई वो रिजेक्ट कर दी। इसको सिलेक्ट किया था जस्टिस वालों ने, आईटीआई वालों ने, पर इसको नहीं किया। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर मैं आऊंगा। आपके रिपीटेड डिले और एस्केलेशन, कोई इसके बारे में जिक्र नहीं है इसके अंदर में कि ये रिपीटेड डिले क्यों हो रहे हैं, ये कॉस्ट एस्केलेशन क्यों हो रही है, और इसमें नो मेंशन ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, टाइमलाइन एंड फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपकी रोड की तवाई मैडम, आपके मिनिस्टर तो सारे चले गए, आप गई थी पंचायत में, क्या लगती उस रोड की 75 करोड़ रुपया लगा उस रोड पे, 75 करोड़ रुपया। और उसके ऊपर में एक एक्सीडेंट को टैग भी किया गया था, वो ज्यादा बाद में आया जो गड़बड़ी पहले वालों की थी। आज बुरी हालत है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की। सो कोई मेंशन नहीं है इसमें क्वालिटी कंट्रोल का, टाइम लाइन्स का और फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसको मैडम प्लीज करवाइए जी, आप यहाँ बैठे हैं। गवर्नेंस एंड ट्रांसपेरेंसी, आपके ट्रांसपेरेंसी डिसीजन में होगी, ये हमें कहीं एड्रेस में नहीं मिला। ये इसमें पब्लिक ग्रीवेंसेस का रिड्रेसल वो फाइलों में घूम रहा है और पब्लिक को कोई फायदा नहीं मिल रहा है। आपका लेजिस्लेटिव ओवरसाइट, आई मेंशन दिस ड्यूरिंग द बजट कंसल्टेशन मीटिंग्स। एक कमिश्नर और एक डिप्टी कमिश्नर, ही इज so much empowered that he can ask whether a MLA has got a legislative oversight. This is, I think they are bringing shame to this house. If they are not having it, what is the legislative oversight? Legislative oversight means supervisory role. Legislative means review. Legislative means to examine. Legislative means to summon. Legislative means to go in for public interest. I am not usurping their executive functions. I am only doing my constitutional duty, which is enshrined in the Constitution of India. Not anywhere else. In 164, where they say there is a collective responsibility of the minister to the legislative assembly, to the legislature. The principle of the doctrine of collective responsibility. अगर एक मिनिस्टर को रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर क्वेश्चनिंग करते हैं तो मिनिस्टर के नीचे का जो पूरा दायरा है तो वो तो आंसरेबल क्यों नहीं हो? क्योंकि ये कंसेप्ट किसने दिया उनको, ये मेरे को पता नहीं है। मैं ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं आपसे इस बात पर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इसको थोड़ा देखिए, ये लेजिस्लेटिव ओवरसाइट का वर्ड ये कैसे यूज कर रहे हैं। हमारा 2 चीजों के ऊपर में ओवरसाइट है, एक एग्जीक्यूटिव के ऊपर और दूसरा बजट के ऊपर में। वो भी थिंग कम अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। और जो मिनिस्टर के पास में कॉन्स्टिट्यूशन भी है और एग्जीक्यूटिव भी है, दैट्स व्हाई ही इज मेड अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली। Sir, now I will discuss some, I will state some facts. इसमें जहां कहा गया कि 1987 के इलेक्शन थे, बड़े मैं रिस्पेक्ट करता हूँ फारूक साहब की, बड़े अच्छे ब्यूरोक्रेट थे, जब गए तो हमारे को एडजस्ट करते थे। और इन्होंने कहा कि ये गवर्नर रूल में हुए, जब गवर्नर रूल में नहीं हुए
6 नवंबर 86 को एलसी और कांग्रेस की गवर्नमेंट आ चुकी थी, उसके अंदर मुझे लिखा हुआ है दिस फैक्ट मे बी करेक्टेड। नंबर 2 नहीं सर नंबर 2 सर, there is a misconception. I heard 3 or 4 speakers saying there is a loot of GST. There is a loot of GST. सर, आप इस कमेटी के चेयरमैन रहे हैं पूरे ऑल इंडिया के। सर, our state is a consumption state. We are benefited from the GST because destination based tax है, और हमने यूपी ने बिहार ने किया, और नुकसान हुआ वो महाराष्ट्र को हुआ। और इस जीएसटी जो है इसको अपोजिशन एससी जो है, ये मेरे रूलिंग में की सुन ले, ये पैसा आपको जाता है। और आईजीएसटी का शेयर भी आपको आइडर थ्रू फाइनेंस कमीशन आपको सेंट्रल से आपको आता है ग्रांट करूंगा। पावर सेक्टर की डेवलपमेंट का कल एक एमएलए कह रहे थे कि 40,000 करोड़ रुपया, और कोई कहता था कि हमारे पास में नहीं है। दिस इज ऑल विद इन द स्टेट में, नो वन कैन स्टॉप यू। नाउ इंडस वाटर ट्रेटी स्टैंड एब्रोगेटेड, दैट हैज बीन सस्पेंडेड। नाउ जितने भी प्रोजेक्ट उन्होंने अपनाइए, आपको कोई रोक रहा है, स्टेट को कोई रोक रहा है, जितने प्रोजेक्ट उन्होंने जाते अपनाइए, और पैसा उसका। पर आज तक आप 75 साल में एक तो बड़ा प्रोजेक्ट स्वाय हमारा इसका बगलियार का, उसके अलावा हम कुछ नहीं बना सकते। इसलिए मैं आपसे माफी चाहूंगा कि इसके बारे में हाउस के अंदर में ऐसे स्टेटमेंट मत दीजिए। सर, लास्टली आई विल कम टू द प्रॉमिसेस, पॉलिटिकल प्रॉमिसेस दे हैव मेड इन देयर एजेंडा। दे आर पॉलिटिकल। आई विल ट्राई टू बी ब्रीफ, बट आई विल लेट द रिकॉर्ड बी सेट स्ट्रेट बिकॉज सो मेनी पीपल हैव सेड सो मेनी थिंग्स। सर, जिस वक्त इस स्टेट को स्पेशल स्टेटस दिया गया और ये आर्टिकल 370 ड्राफ्ट हुआ, 35A was not a part of the constitution. It was inserted to a presidential order. It was not discussed in the parliament. It was just attached with as an appendix. इसमें इससे क्या स्टार्ट हुआ? There started gender discrimination first. Then there was a refusal to accept the back Pakistan refugees. They brought Baltikis to squelch their dirty things, but they refused to provide employment to those people. Even Gorkha, who fought for this state, they were denied the states they had fixed. Then states started moving towards integration in the decade of 1960 onwards. Then a break came in the last decade of 80s. Then a stream of militancy started erupting in Kashmir. तो उस वक्त के बाद में मिलिटेंसी का दौर स्टार्ट हुआ। इस आर्टिकल की वजह से इतनी क्लिंजिंग वहां से स्टार्ट हुई, किलिंग स्टार्ट हुई। कश्मीर में कितनी किलिंग हुई, इतनी क्लिंजिंग हुई, क्या ये फैक्ट रिकॉर्ड पर है या नहीं है? क्या कोई इसको डिनाई कर सकता है? इसमें मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज, ये मेरे ऑनरेबल मेंबर गुरेजी साहब सुन रहे हैं, इसमें यू अलाइन with the separatist forces to support them because you buckled under their pressure. That's why you started asking for an autonomy. You started traveling from autonomy. Then came the government of PDP Congress. They started traveling to self-rule. From self-rule, we started traveling towards the independence. Somebody started saying we want a independent Kashmir. Then they went further. They said we want a theocratic state. Then came the incidents of stone planting हुई। फिर उसके बाद में आपने ये शीला सानी के केस में जब आपको कोर्ट ने कहा कि वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज को कंसीडर करो, मूवमेंट को स्टेट दे दो, उस वक्त आपकी कमेटी में इन्होंने कहा जब तक रीसेटलमेंट एक्ट को लागू नहीं किया जाता तो हम इसको इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। द प्री कंडीशन, द कंडीशन प्रेसिडेंट वाज दैट रीसेटलमेंट एक्ट शुड बी इंप्लीमेंटेड। देन आफ्टर दैट शीला सानी केस, फिर उसके बाद में आपने यहाँ पर ये पिछली गवर्नमेंट के टाइम पे एक एक्ट लाया गया जो इस स्टेट को किस तरफ धकेल रहा था, यह सुबह लगा। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर में अमेंडमेंट थी और लैंड एलिवेशन एक्ट के अंदर में अमेंडमेंट थी। वो इसमें सेलेक्ट कमेटी को भेजी गई, अगर वो इंप्लीमेंट होती
तो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक भी दायरा इधर में काम नहीं कर सकता था। ये पूरी आर्मी को जमीन विकेट करनी पड़ती, बैंक को विकेट करनी पड़ती, जितने हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के इंटरप्राइजेज उनको विकेट करनी पड़ती। उसके बाद में बुरहान वानी की डेथ पे ये कहा गया कि पॉलिटिकल स्पेस दो, लाखों लोगों को इकट्ठा होने दो, और ये सेंट्रल सरकार देख रही थी। ये इसमें बुरहान वानी की डेथ के बाद में फिर एक बहुत बड़ा इंसिडेंट आया कि उन्होंने कहा, पीडीपी वालों को मैं बताना चाहता हूं, मैडम महबूबा मुफ्ती ने तो सेंटर को चैलेंज कर दिया। उसने कहा, those who oppose Article 370, they are the traitors of this nation। मतलब आपके पूरा हिंदुस्तान ट्रेटर हो गया। तो फिर तो लगा कि आपने इसका मिसयूज की, एक लास्ट पॉइंट को पहुंच गया। डू सम इंट्रोस्पेक्शन। ये बीजेपी ने नहीं तोड़ा, ये आप लोगों के कारनामों से ये टूटा, और लोगों के कारनामों से टूटा। ये मैंने अगर ये टाइम मेरे पास होता, मैं इतनी बड़ी हिस्ट्री लाया हूं, मैं आपको हिस्ट्री बता सकता था कि ये कैसे टूटा। और सुनिए, इसमें जो आप लोग कह रहे हैं कि इसमें ये आपने कुछ फैक्ट्स कहे हैं। इसमें आपने कहा कि ये कांग्रेस को बीजेपी ने बनाया, नहीं इसको पीडीपी को। मैं स्पीकर साहब, मैं आपको कहना चाहता हूं, ये इनकी करेक्शन के लिए 21 मेंबर कांग्रेस के थे, पीडीपी के नहीं थे। कांग्रेस डिक्लाइन टू जॉइन हैंड विद द एलसी, दैट्स व्हाई पीडीपी एंड कांग्रेस केम टू पावर। नहीं बीजेपी नहीं, तो मैं 2002 बोलता रहा हूं, मैंने 2002 बोलता रहा हूं, मैं आपका रिकॉर्ड सेट कर रहा हूं, गुरुजी साहब आपका रिकॉर्ड सेट कर रहा हूं। नहीं अच्छा मेरी बात सुनिए, Speaker sir, my time is here. I have got party side. I don't. You don't want to allow this fact to place on the house. How can I speak? Sir, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, sir, all their actions led to a state of confrontation with a secular, democratic, and pluralistic polity of India. Thereby, they came in direct confrontation. There was a strong confrontation. It was in conflict. That's why the central government was forced to think afresh कि whatever है। और ये एक और रिकॉर्ड रखना चाहूंगा, ये कश्मीर के लीडर सुन ले। जब 1964 में गुलजार नंदा हमारे होम मिनिस्टर थे, उस वक्त प्रकाश वीर शास्त्री ने एक प्राइवेट मेंबर बिल मूव किया था इसको एब्रोगेट करने के लिए, और 6 के 6 मेंबर जो कश्मीर के थे उन्होंने इसको एब्रोगेट करने के फेवर में वोट डाला था। बट ऑल द 6 मेंबर फ्रॉम योर कश्मीर एंड जम्मू दे आर वोटेड इन फेवर ऑफ एब्रोगेशन। आप इसको क्यों बोल रहे हैं? ये हमारे वीर साहब बड़े ही समझदार, और मैं उनका आदर सत्कार करता हूं। उन्होंने कहा कि एनआईए को ये पीडीपी वाला लाए, बोल मैं फैक्ट क्लियर कर दूं, कांग्रेस से जाता था स्टेट की, ये ऑटोमेटिकली इसकी एक्सटेंशन जब ये ड्यूटी बनी उसके बाद स्टार्ट हुई, इसके पहले नहीं था। ये फैक्ट क्लियर कर दूं कि इन्होंने लाया। You are placing wrong facts on the program. Therefore, I have to correct it. Whether it is from the PDP or from the NC or from somebody else. मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ कि इसमें आपने लास्ट में कहूँगा, क्योंकि आप मेरे को 12 टोक रहे हैं, आप मेरा सारा जो मेरी मजबूरी है, लाइन की मजबूरी है, ये बड़ा लंबा डिबेट है। ये किसी दिन Speaker sir, the action plan for fulfilling 4 promises, a white paper on employment and unemployment, a clear roadmap for health and education, measures for price control and livelihood production, commitment to constitutivity of officers and departments. Sir, the opposition does not oppose for the sake of opposition. We oppose for non-performance, delay and denial of legitimate public concerns. The Honorable LG's address would have inspired confidence if it had reflected outcomes, not intentions. Not intention, delivery, not declaration.
You have declared but not delivered. You are thousand times. Thank you. But not outcome. We hope Thank you. Sarvi Sari sir. Sarvi Sari sir. Thank you very much. Thank you very much. Next time. Next time. and is accountable. Nothing will record now. Okay.